All right, good morning. Welcome back to another class of body fluids and circulation. So, we were doing a topic called as cardiac cycle. So, in the last class, we spoke about events of cardiac cycle and then we also spoke about mechanism of cardiac cycle, right? We started up with the definition of cardiac cycle. हमने ये भी बोला था कि cardiac cycle को हम correlate करेंगे with the heartbeat. Correct. Now heartbeat has a characteristic lub and dub sound. Correct. So a quick recap of what we did in the cardiac cycle. We spoke about the events of cardiac cycle, where the first event which we account for 0.1 second, that is atrial systole, which is followed by ventricular systole for 0.3 second, and then which is followed by joint diastole. Correct. And we also spoke about the overlapping events here. During ventricular systole, there is atrial diastole, and during ventricular diastole, there is atrial systole for 0.1 second. Right. So all of that was already done in the previous class. So continuing from there, when we did the steps of cardiac cycle, we spoke about the heart sounds, right? Generally इस questions इस heart sound के ऊपर बहुत बार question पूछा जाता है. So we will do it in much detail. Okay, it's so that you have a recorded video or recorded extract for that, just to revise in future, right? So we know that heart sound, हमको बचपन में ये पढ़ाया गया था that there are only two heart sound, that is lub and dub. माधुरी दीक्षित के लिए वो है धक धक, right? So there was no difference in the sound, धक 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 करने लगा, right? But when you talk about the medical terms, it is lub dub. So the first sound is of high intensity, correct? High intensity and a low pitch sound. And the second dub sound जो है, it is comparatively sharper, right? And it has a high pitch sound, correct? And we also spoke about two more extra sound, that is S3 and S4. S3 and S4 ये जो sound है, they are not pretty easily audible. If you just have to hear it from outside the body, it is not practically audible. So you need to have a very high grade stethoscope, right? So to listen to these heart sound. So when you talk about the process of listening to heart sound, okay, the process or the act of listening to the heart sound, ये technical term है बेटा, medical term है. The process of listening to the any type of, सिर्फ heart sound नहीं, but any type of body sounds, the process is called as auscultation. So जो डॉक्टर स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं बॉडी साउंड्स को, दैट मीन्स वी यूज इट दैट द डॉक्टर इज ऑस्कल्टेटिंग, correct? So we using a stethoscope, so to listen the body sound, the device used is a stethoscope. ठीक है? Stethoscope was invented, you don't need to know this, it was invented by Lian. You don't have to remember this is just an extra piece of information. Only you have to remember that what is the process of hearing or listening to the body sounds, that is auscultation. ठीक है? So when you auscultate a particular person, so we listen to different type of sounds. So heart sound में सबसे पहला जो sound है, that is S1, and S1 को हमने नाम दिया है lub. Okay, so lub sound, in the last class we spoke that the sound lub is produced due to closure of the valves. ये valves जो है, जो membranous structure है, ठीक है,
एनसीईआरटी में वॉल्व्स को मस्क्यूलर स्ट्रक्चर बोला है. इफ़ यू रीड एनसीईआरटी वेरी केयरफुली, वॉल्व को उन लोग ने मस्क्यूलर स्ट्रक्चर बोला है बेटा, राइट. बट इफ़ यू प्रैक्टिकली सी दैट वॉल्व्स में मसल सेल्स नहीं होते, राइट. इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ, I repeat, it is an extension of your endocardium. So in other words, these valves, they are membranous structure but having muscular property. ठीक है, उसमें मसल सेल्स नहीं होते हैं. ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, आई डोंट नो, थोड़ा सा गलत प्रिंट हुआ है. व्हेन दे आर नॉट बॉदर टू चेंज इट, सो मे बी वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको मसल्स ही कंसिडर करने हैं, बट प्रैक्टिकली इट डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ मस्क्यूलर सेल्स. ओके, तो जो लब साउंड है, यू नीड टू नो दैट इट इज़ अ लो पिच साउंड. ठहराव से लो पिच साउंड मेल्स का होता है आफ्टर प्यूबर्टी, है ना. मेल का लो पिच साउंड होता है, वेरएस फीमेल की हाई पिच साउंड होती है ना. अगर फीमेल चीखती है तो ऐसे लगता है कि कान के अंदर बुलेट घुस गई, है ना. तो इट्स अ लो पिच साउंड. लब इज़ अ लो पिच साउंड, ठीक है. एंड द रीज़न वाई यू हियर द लब साउंड इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ AV valves, both tricuspid and bicuspid valves. ठीक है. So what does this indicate? When there is closure of AV valve, what does it indicate? Correct. AV valve अगर बंद हो रहे हैं तो क्या, what is the next event which has to start, right? उधर AV बंद हुआ और SL खुला, correct. So it is technically indicating the beginning of, it indicates the beginning of ventricular systole. Okay, so I have told you this, the reason of why does a valve open and why does a valve close, right? So the opening of the valve and closure of the valve is associated with the pressure difference in the chambers. So अगर AV valve खुले है, इसका मतलब एट्रिया में प्रेशर, अगर AV valve खुले है इसका मतलब एट्रिया में प्रेशर इज मोर एंड वेंट्रिकल में प्रेशर इज लेस. तो बिकॉज हियर इट इज हाई प्रेशर एंड इन दी वेंट्रिकल इट इज लो प्रेशर, ठीक है. एंड नेचर यही बोलता है दैट प्रेशर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसीलिए यहाँ के वॉल्व्स खुल गए और यहाँ से ब्लड उतर कर आ गया वेंट्रिकल में. वॉल्व्स बंद होने के लिए क्या चीज़ चाहिए? वॉल्व्स बंद होने के लिए एट्रिया में, अगेन वॉल्व्स अगर बंद हो रहे हैं दैट मीन्स वेंट्रिकल, बिकॉज ब्लड यहाँ पे भर गया है, वेंट्रिकल का प्रेशर अभी ज़्यादा हो जाता है एंड सिमिलरली एट्रिया का प्रेशर कम हो जाता है, करेक्ट. बट वॉल्व्स तो मेरे को पता है कि वॉल्व्स उल्टे डायरेक्शन में खुल ही नहीं सकते, correct. Ideally what should be the condition here, that because the ventricular pressure is more and atrial pressure is less, right, the valve should open the other way around and the ventricle से blood जाना चाहिए एट्रिया में. बट ऐसा practically होता नहीं है. ऐसा अगर होगा तो then there is a very strong locha, right, and we know that the valves do not open in the other side because of the chordae tendineae. Cool. सो वॉल्व्स उस तरफ खुलने की जगह पे वो बंद हो जाते हैं. इट्स एज सिंपल एज दैट. इज दैट वेरी क्लियर? आई एम इरेजिंग दिस बिकॉज ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में बता दिया था. सो आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट, आई डोंट वांट टू वेस्ट द पेज एनी विच वेज. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साउंड, दैट इज द S2 साउंड एंड दैट्स कॉल्ड एज डब. अब एनसीईआरटी में इसको डब भी बोला है, सो इट इज़ एब्सोल्युटली ओके, राइट. सो डब जो साउंड है दैट इज कंपेरेटिवली हाई पिच साउंड. इट इज अ हाई पिच साउंड, कैरेक्टरिस्टिकली ऑडिबल, ठीक है. हाई पिच साउंड दैट मीन्स इट्स कंपेरेटिवली शार्पर, and this takes place
This takes place, it is due to the closure of, this takes place due to the closure of SL valve. ठीक है, तो अगर बेटा SL valve क्लोज हो रहे हैं तो what should be the event which should take place? SL valve बंद हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली AV valve को खुलना है, राइट? सो AV valve अगर खुल रहा है, सो व्हाट डज इट इंडिकेट? पर्टेनिंग टू वेंट्रिकल ही बोलो. पर्टेनिंग टू वेंट्रिकल, व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल. ठीक है, सो इट indicates beginning of ventricular diastole. ऑलराइट बेटा, ठीक है. सो डब साउंड के बारे में आपको इतना ही जानना है. आपको रीजन पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, एंड व्हाट डज इट इंडिकेट, ये पूछा जा सकता है. कूल. नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड साउंड, S3 बोलते हैं बेटा इसको. S3 इज अ फेंट साउंड. आई टोल्ड यू इट्स अ फेंट साउंड, दैट इज व्हाई यू यूज अ हाई ग्रेड स्टेथोस्कोप. ठीक है, इट इज अ फेंट साउंड which can only be audible with the help of a stethoscope. ठीक है, सो वाई डज दिस साउंड कम इनटू एग्जिस्टेंस? मैंने आपको बताया था कि S3 कब आएगा? जब AV valve खुल गए. AV valve जब ओपन होते हैं, सो देर इज एट्रिया, देर इज वेंट्रिकल. तो AV valve अगर खुल गए तो एट्रिया का सारा ब्लड विल बी पोर्ड डाउन इनटू द वेंट्रिकल एंड देयर विल बी अ टर्ब्यूलेंस क्रिएटेड. एक गशिंग साउंड आएगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज टर्ब्यूलेंस? ये जो फ्लाइट में एक टर्ब्यूलेंस आता है जब फ्लाइट टेक ऑफ करता है या लैंडिंग करता है, तो देयर इज अ टर्ब्यूलेंस, करेक्ट? इट्स अ गशिंग साउंड विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड, राइट? So what is the reason for S3 to come up? It is due to the turbulence created, turbulence in the blood created by opening of AV valves, by the opening of AV valves, right? So when does this sound come into existence? It is during the first rapid filling. Cool. सिमिलरली S4 क्यों होगा? ये भी एक टर्ब्यूलेंस की साउंड है बेटा. गश गश ऐसे साउंड आती है. दिस इज ऑल्सो अ फेंट साउंड टेक्निकली, ओके. एंड ये क्यों होगा? अगेन इट इज अ टर्ब्यूलेंस इन द ब्लड. ओके, पहला टर्ब्यूलेंस क्या था? एट्रिया पूरा का पूरा खाली हो गया इनटू द वेंट्रिकल, but there is still blood which is present in the atria because atria is continuously undergoing diastole, right? कंटिन्यूसली वो वेंट्रिकल के साथ डायस्टोल अंडरगो कर रहा है, राइट? सो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज स्टिल प्रेजेंट, करेक्ट? सो S4 जो साउंड है दैट इज ड्यू टू टर्ब्यूलेंस क्रिएटेड. यहाँ पे रीजन क्या था बेटा? यहाँ पे रीजन क्या था? इट वॉज क्रिएटेड, टर्ब्यूलेंस वॉज क्रिएटेड ड्यू टू ओपनिंग ऑफ AV valve. પછી यहाँ पे टर्ब्यूलेंस क्यों क्रिएट हुआ है? यहाँ पे टर्ब्यूलेंस क्रिएट हुआ है ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल. ठीक है, तो इट इज ड्यू टू टर्ब्यूलेंस in the blood created due to atrial systole. Turbulence created due to atrial systole, that is nothing but the second rapid filling. ठीक है बेटा,
तो बोलने का मतलब ये है, सो इट्स अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट आर द डिफरेंट साउंड्स विच वी अंडरस्टूड. सो आपको इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा. S3 एंड S4 जो है, अगेन दिस इज अ हायर लेवल टॉपिक, सो यू डोंट हैव टू ब्रेक योर हेड ओवर S3 एंड S4, बट सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस आई विल हैव टू डू दैट. Cool. I'm moving to the next slide, and we take up a new topic that is related to the cardiac cycle, and that new topic is referred to as cardiac output. Cardiac output. Now, very characteristically, if I say that heart is a machine, right? Heart is a device technically. So this device ultimately should be measured, or this device की efficiency should be measured, and that measuring efficiency, that gauging क्या बोलते हैं उसको, parameter with respect to your machine, with respect to your heart, is referred to as cardiac output. ठीक है. सो घूम फिर कर कार्डियक आउटपुट, एक मशीन की आउटपुट आप कितने, आप बोलते हो ना कि ये जो दिस पर्टिकुलर मिक्सर ग्राइंडर, इट टेक्स अप 100 रोटेशंस पर मिनट. सो हियर व्हाट आर यू ट्राइंग टू कोरिलेट? यू आर ट्राइंग टू कोरिलेट द एक्टिविटी ऑफ द मशीन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, कि एक मिनट में कैसा है, एक आवर में कैसा है. जैसे हम गाड़ी की स्पीड बोलते हैं, दिस इज it was running at 80 kilometers per hour, right? Because here we were talking about the a car, automobile, right? So similarly, अगर मैं हार्ट की एफिशिएंसी की बात करूँ, तो हार्ट का काम क्या है? पंप करना है, मोटर है, पंप करना, राइट? सो हार्ट एक मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है थ्रू आउट द बॉडी इज नथिंग बट योर कार्डियक आउटपुट. सो in other words, how do you define cardiac output? Predominantly, you say that it's the volume of the blood, per minute के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, that because that is my per unit time बेटा. ठीक है. So it is the volume of blood pumped by the heart. कहाँ से पंप होगा अल्टीमेटली? तो अल्टीमेटली ये पंप तो वेंट्रिकल से होगा, करेक्ट? बाय द हार्ट इनटू, वेंट्रिकल से पंप होकर कहाँ पे जाएगा? इनटू द मेजर आर्टरीज, राइट? सो इट्स द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इनटू द मेजर आर्टरीज, that is your pulmonary artery and aorta, into the major arteries, that is aorta. Predominantly we will take it as aorta and pulmonary artery. Okay. During, कब हो रहा है ये? Only during ventricular systole, right? During ventricular systole पर मिनट टाइम. सो यहाँ पे मिनट को हम यूनिट डायमेंशन लेंगे, यूनिट टाइम लेंगे. सो आई रिपीट द डेफिनेशन, दैट इज कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इनटू द मेजर आर्टरीज. कब होगा ये? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल पर मिनट टाइम. ठीक है. सो कार्डियक आउटपुट का कुछ तो फॉर्मूला होगा, है ना? सो हाउ डू वी कैलकुलेट? बिकॉज इसके ऊपर एग्जाम में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है बेटा. ठीक है. सो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? अरे, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला बेटा है स्ट्रोक वॉल्यूम into number of heartbeats. In other words, number of heartbeats per minute क्या होगा? Heart rate. So stroke volume into heart rate. Okay, what do you mean by heart rate and what do you mean by stroke volume? We will try to define that. So what is heart rate? To be very precise,
It is number of heartbeats. It is number of heartbeats per minute time. ठीक है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट टाइम कितना बेटा 72 बीट्स पर मिनट. ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है पची अपना स्ट्रोक वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा सा नवा है. ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. देखो स्ट्रोक, एक स्ट्रोक में कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड जा रहा है फ्रॉम द वेंट्रिकल. आई रिपीट, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. इट इज the volume of the blood leaving the ventricle in one stroke. यहाँ पे stroke क्या होगा, एक contraction. करेक्ट. सो स्ट्रोक वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by the ventricles in one ventricular systole. अब कॉमन सेंस है ना बेटा यहाँ पे कि एक कॉन्ट्रैक्शन में एक वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना वॉल्यूम पंप हो रहा है. ठीक है, इनटू द मेजर आर्टरीज, इनटू कितने बार पंप हो रहा है, उसका मतलब है हार्ट रेट. ओके, और कितना वॉल्यूम पंप हो रहा है, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. सो आई रिपीट, इन वन स्ट्रोक, हियर स्ट्रोक इज कोरिलेटेड विद वेंट्रिकुलर सिस्टोल. सो व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम. इट इज द ब्लड वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय द वेंट्रिकल इन वन वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ठीक है, सो देयरफॉर cardiac output is equal to generally the stroke volume. That means a normal ventricle की जो capacity है, normal ventricle की capacity is 70. Okay, एक ventricle में से 70 ml of blood is pumped. 70 ml of blood is pumped per unit. मतलब technically in one heartbeat 70 ml of blood is pumped in one ventricular systole. 70 ml of blood is pumped and into the heart rate is 72 beats per minute. 25 को मल्टीप्लाई कर लो तो दैट कम्स डाउन टू अप्रॉक्सीमेटली, आपको आएगा अप्रॉक्सीमेटली नहीं डायरेक्टली आंसर आ जाएगा बेटा. तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इट इज 5040 ml. अब चलो ना 40 ml को क्या करना है अपने को, तो 5040 ml को हम कोरिलेट करके लिखेंगे, घूम फिर कर बड़ा सा फिगर लिखेंगे 5 लीटर. ओके, सो कार्डियक आउटपुट कम्स डाउन टू 5 लीटर. मतलब एक मिनट में आपके हार्ट की जो कैपेसिटी है इज टू पंप 5 लीटर ऑफ द ब्लड फ्रॉम इट्स चेम्बर. अब कॉमन सेंस ये भी है बेटा कि ब्लड सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, तो हर मिनट में जो हार्ट से लीव करेगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5 ml. करेक्ट. बट बेटा यहाँ पे व्हेन आई से pumped by each ventricle, ओके, सो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल की कॉन्सेप्ट में जाऊँ, सो विच वेंट्रिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट इज दी लेफ्ट वेंट्रिकल, बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. करेक्ट. whereas right ventricle से blood goes to the pulmonary artery and pulmonary artery में it goes for oxygenation. Is that right? So in other words cardiac output को हम लिखेंगे 5 लीटर पर मिनट. ये आपके दिमाग में आपको फिट करके रखना है. एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा, कार्डियक आउटपुट कभी कभी दे देंगे और आपको स्ट्रोक वॉल्यूम फाइंड आउट करने को बोलेंगे, या फिर आपको हार्ट रेट फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे. दीज 3 डिटर्मिनेंट फैक्टर्स विल बी गिवन टू यू एंड आउट ऑफ दीज 3 यू विल हैव टू फाइंड आउट वन वेयर यू हैव टू अप्लाई बेसिक मैथ. इज दैट वेरी क्लियर. बट चलो बेटा एक चीज़ तो यहाँ है कि 5 लीटर हमने बात कर लिया विद रिस्पेक्ट टू वन वेंट्रिकल, राइट. बट दूसरा भी वेंट्रिकल है, सो द एक्चुअल कार्डियक आउटपुट, मतलब एक 2 वेंट्रिकल है, सो द एक्चुअल कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर प्लस 5 लीटर. बिकॉज ये 5 लीटर जो है
दैट इज फ्रॉम द पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये हम लोग बात करेंगे थोड़े टाइम के बाद। पल्मोनरी सर्कुलेशन, और बाकी का जो 5 लीटर है दैट इज गोइंग टू दी सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, बट पल्मोनरी सर्कुलेशन तो मेरे को पता है जितना ब्लड जा रहा है उतना ही ब्लड वापस आ जाएगा, करेक्ट। बस सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऐसा हो सकता है दैट द ब्लड इज गोइंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम द ब्लड ओनली द लिम्फ इज सेपरेटेड। सो ऐसा हो सकता है कि दैट द वॉल्यूमिक कैपेसिटी ऑफ द ब्लड रिटर्निंग बैक टू द हार्ट इज समवेयर डाउन द लाइन अफेक्टेड, राइट। सो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है एज अ मशीन, अगर मैं बात करूँ हार्ट को, सो फॉर मी समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज का सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसीलिए मैं प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो हार्ट का कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर्स, बिकॉज हियर वी आर ओनली कंसिडरिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, पल्मोनरी सर्कुलेशन को हम यहाँ पे इतना डिटेल में हम जाते नहीं हैं। तो एक्चुअल कार्डियक आउटपुट इज 10 लीटर पर मिनट, बट since we are only considering systemic circulation okay, since we are only considering systemic circulation, and one more point of information is that कि दोनों जो है एक साथ हार्ट से बाहर निकल रहे हैं, राइट। सो इन अदर वर्ड्स एक साथ हार्ट से बाहर निकल रहा है, इसका मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि 10 इधर से निकल रहा है 10 इधर से निकल रहा है, राइट। इन वन पर्टिकुलर मिनट 5 लीटर इज पम्प्ड फ्रॉम दी हार्ट। सो घूम फिर कर 5 + 5, ऐसा नहीं हो रहा कि पहला 5 पहले जा रहा है फिर बाद में का 5 लीटर बाद में जा रहा है। अगर ऐसा होता, एक के बाद एक होता, तो द कार्डियक आउटपुट वुड हैव बीन एक्चुअली 10 लीटर। ठीक है, थियोरेटिकली एंड प्रैक्टिकली ऑल्सो। बट सिंस हियर बोथ ऑफ द conditions, both 5 liters, they are removed or they are pumped out into the blood vessels at the same time. Hence we only consider systemic circulation. Therefore we say practically the cardiac output is 5 liter per minute. अपने दिमाग में फिट कर लो, अपने हाथ में टैटू कर लो, अपने ज़बान पर जो भी करना है कर लो, ठीक है। बट दिस शुड बी, ऐसे नींद में किसी ने झंझा कर उठाया आपको और पूछा कि कार्डियक आउटपुट कितना है, तो 5 लीटर बोलना है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स दैट इज एसोसिएटेड विद कार्डियक आउटपुट। डिटर्मिनेंट फैक्टर क्या है बेटा? स्ट्रोक वॉल्यूम। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये सब पूछा जा सकता है, लेट्स टेक अप अ क्वेश्चन हियर, ठीक है। द क्वेश्चन इज अ पर्सन डूइंग फिजिकल exercise has increased his pulse rate। अब pulse rate के बारे में थोड़े से बात करेंगे बाद में। his pulse rate to 110 pulse per minute, ठीक है। what is the कार्डियक आउटपुट? अब बेटा पल्स क्या है, पल्स रेट क्या है? पल्स का मतलब क्या है? पल्स रेफर्स टू अ स्मॉल जर्क। प्रेग्नेंट है लेडी या चक्कर आकर गिर गए हो, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपका पल्स चेक करता है। सो डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर डज नॉट हैव अ स्टेथोस्कोप फॉर नाउ, बट ही हैज़ टू चेक he has to see the heart rate, right? तो वो क्या करता है? तो वो पल्स मेजर करता है, करेक्ट। वो पल्स को फील करता है। तो पल्स कहाँ पे फील हो रहा है बेटा? पल्स आपके रिस्ट पे फील होता है, राइट। सो पल्स इज अ स्मॉल जर्क which is experienced in the in the arteries, but जो आर्टरी है वो सुपरफिशियल आर्टरी होनी चाहिए, करेक्ट। सो अगर नंबर ऑफ पल्स पर मिनट इज कॉल्ड एज पल्स रेट, तो पल्स रेट इज कोरिलेटेड विद द हार्ट रेट, ठीक है। तो
क्या इस इंसान का स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्या इस इंसान का अमाउंट ऑफ ब्लड लीविंग दी हार्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? तो 70 तो 70 होगा ना बेटा. Are we understanding it? अगर कुछ भी नहीं दिया है, थोड़ा सा चेंज हो रहा है बेटा, बट थियोरेटिकली वी कैन नॉट गो अगेंस्ट दैट. सो यू अगर कुछ भी नहीं दिया तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड और यू विल हैव टू अज्यूम दैट द स्ट्रोक वॉल्यूम इज एब्सोल्युटली 70 beats per minute. So therefore CO is equal to stroke volume into heart rate. Heart rate here is correlated with the pulse rate. ठीक है. स्ट्रोक वॉल्यूम के કેટલું છે 70 और दिस थिंग हार्ट रेट कितना है बेटा 110 बीट्स पर मिनट. ठीक है. मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो. मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या आंसर आएगा 7700 दैट अकाउंट्स फॉर दैट ml पर मिनट 6. ठीक है. दैट अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7.7 लीटर पर मिनट. इतना बेसिक क्वेश्चन, इतना बेसिक मैथ तो बच्चों को आना ही चाहिए. ठीक. सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्डियक आउटपुट. नाउ हियर व्हाट वी कैलकुलेटेड हियर. ठीक है. कार्डियक आउटपुट हमने एक फिजिकल एक्सरसाइज के पेशेंट के लिए कैलकुलेट किया. ठीक है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अनदर कॉन्सेप्ट. ये डेफिनेशन के हिसाब से आपको पूछा जा सकता है. दैट इज कार्डियक रिजर्व वॉल्यूम. कार्डियक रिजर्व वॉल्यूम. इसका मतलब क्या है बेटा कि आपके हार्ट का रिजर्व वॉल्यूम कितना है, मतलब व्हाट इज द पोटेंशियल और व्हाट इज द एबिलिटी दैट द हार्ट रिजर्व रख सकता है, और रिजर्व को वो इंक्रीजिंगली वो वॉल्यूम को पंप कर सकता है आउटसाइड द ब्लड. सो कार्डियक रिजर्व वॉल्यूम इज द डिफरेंस. Cardiac reserve volume is the difference between the maximum, it is the difference between the maximum cardiac output and the normal cardiac output. मतलब नॉर्मल कार्डियक आउटपुट 5 लीटर है, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है. इफ अ पर्सन इज डूइंग ए हैवी फिजिकल एक्सरसाइज, इतना तेज दौड़ रहा है, तो उसका हार्ट रेट मैक्सिमम रेट तक पहुंचेगा, कार्डियक आउटपुट मैक्सिमम तक पहुंचेगा, बट इट कैन नॉट क्रॉस बियॉन्ड दैट. ठीक है. सो द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट एंड नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, सो देयरफॉर CRV इज इक्वल टू मैक्सिमम कार्डियक आउटपुट माइनस नॉर्मल कार्डियक आउटपुट. ठीक है. सो एक नोट ले लो यहाँ पे. एक नोट है दैट अ पर्सन डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज, का कार्डियक आउटपुट इज 21 लीटर्स पर मिनट. बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना, तो 21 लीटर्स पर मिनट. सो देयरफॉर CRV इन दिस केस इज 21 लीटर माइनस 5 लीटर, दैट कम्स टू 16 लीटर पर मिनट. ओके. 16 लीटर पर मिनट. इज दैट वेरी क्लियर? ऑल राइट. सो CRV दैट इज कार्डियक रिजर्व वॉल्यूम, ये आपको इतना समझना है with respect to the entire section of your cardiac cycle. ठीक. All right. So now let's go back to a new topic altogether. A new topic because of this. ठीक है. Because of this particular condition. Okay. Because of this particular condition. वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि हार्ट की जो पंपिंग है उससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जन्म लेता है इन योर बॉडी, एंड दैट इज ब्लड प्रेशर. ठीक है. सो ऑल टुगेदर वी विल टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर, अ न्यू टॉपिक ऑल टुगेदर, बिकॉज दैट पर्टिकुलर टॉपिक इज द मेजर प्रॉब्लम, और हमको इसी टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारे चीज़ें डिस्कस करनी है. ठीक है. इट इज़ ब्लड प्रेशर.
ब्लड प्रेशर. ठीक है, वी विल टॉक अबाउट ब्लड प्रेशर इन डिटेल इन दिस क्लास एंड वी विल वाइंड अप आवर क्लास विद द ब्लड प्रेशर. एक छोटा सा लॉ पढ़ना है अपन को ब्लड प्रेशर के बारे में. ठीक है, एंड उसके बाद बस वी विल एंड अप ऑन दैट पर्टिकुलर लेवल. फिर जो बाकी के है हार्ट रेट एंड ऑल वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, ऑल राइट. सो मूविंग अहेड विथ समथिंग कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर. अब कॉमन सेंस ये बताता है कि ब्लड का एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रेशर होगा. ठीक है, ब्लड का एक सर्टेन टाइप ऑफ प्रेशर होगा. अब वो दैट इज इन अदर वर्ड्स कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर. करेक्ट, बट व्हाट इज दिस ब्लड प्रेशर, वेयर इज दिस ब्लड प्रेशर एक्सर्टेड इज माई क्वेश्चन. करेक्ट, सो इन अदर वर्ड्स जब आप एक आर्टरी को कंसिडर करोगे, ठीक है, आई टोल्ड यू आर्टरी में ब्लड प्रेशर से मूव हो रहा है. सो व्हेन दी फ्लोइंग ब्लड, आर्टरी एक ट्यूब है ना बेटा, एक पूरा का पूरा ट्यूब है. जब ये ट्यूब में से ब्लड फ्लो हो रहा है सो डेफिनेटली इट इज एक्सर्टिंग दी प्रेशर ऑन दी वॉल्व्स. सिंपल केस ले लो, अगर आप गार्डन को पानी दे रहे हो तो अगर वो गार्डन का जो होस पाइप है उस होस पाइप से पानी निकल रहा है. करेक्ट, अब व्हाट विल हैपन अगर ये होस पाइप को आपने थोड़ा सा बंद कर दिया. ठीक है, सो सेम अमाउंट ऑफ ब्लड सेम अमाउंट ऑफ वाटर will have to arise from this small opening. So now the water comes out with a greater amount of pressure. करेक्ट, ये ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रेशर कहाँ से आ रहा है? दिस इज द प्रेशर बिल्ट अप इन द वॉल्स ऑफ द ट्यूब. ये वॉल्स ऑफ द ट्यूब में एक प्रेशर जनरेट हो रहा है विच इज रिलीज्ड विद अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ. करेक्ट, दैट इज ब्लड प्रेशर और दैट इज अ सिंपल वाटर प्रेशर इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, सो घूम फिर कर हमारी बात ये आ रही है कि अगर ब्लड वेसल्स की ल्यूमेन कम हो गई तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है. So that is what we will have to understand, but we will have to understand the definition of blood pressure in the prime place. ठीक है, so what is blood pressure? It is nothing but the pressure. किसके वजह से हो रहा है? The pressure is exerted by blood. किसके ऊपर exert हो रहा है? It is the pressure exerted by the blood on the walls of the arteries. Why do I use the word arteries only? Because arteries के अंदर ही pressure होगा, veins के अंदर pressure is considered to be zero. ठीक है, so the pressure exerted by the blood on the walls of the artery is called as blood pressure. Very clear? ठीक है, अब blood pressure में जो है that is there are two type of blood pressure, something called as systolic pressure and something called as diastolic pressure. तो हार्ट एक मोटर के जैसे काम कर रहा है एंड हार्ट इज सिंपली पंपिंग द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. सो इट इज constantly maintaining a certain amount of pressure around which it is actively performing its work. ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है, सिस्टोलिक प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है. अब ये जो अपना डेफिनेशन है मस्त वाला, ये डेफिनेशन को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे. सो व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टोलिक प्रेशर? इट इज़ द प्रेशर exerted by the blood, definitely blood ही होगा. ठीक है, pressure exerted by the blood on the walls of arteries due to ventricular systole. कॉमन सेंस बेटा, जब योर आर्टरीज आर नेवर एम्प्टी, राइट, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, अ एक्स्ट्रा गश ऑफ ब्लड इज एब्सोल्युटली पम्प्ड इनटू द ब्लड वेसल. तो ब्लड में और प्रेशर जनरेट होगा, ब्लड में और ब्लड बहुत ज़्यादा कंटेंट में हो जाएगा एंड इट विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द नेबरिंग वॉल्स ऑफ द आर्टरीज.
ठीक है. So in other words, what is systolic pressure? It is the pressure exerted by the blood on the walls of the artery during ventricular or due to ventricular systole is called as systolic pressure. Similarly, ये क्या है? It is the pressure exerted by the blood on the walls of the arteries due to ventricular diastole. Due to ventricular diastole. Okay, it is due to systolic, it is the systolic pressure which is heard as a pulse. ठीक है, it is the systolic pressure which is experienced as a pulse on the radial artery. Okay, so in other words, your systolic pressure is very important determinant factor. So the normal value for systolic pressure, normal value for systolic pressure is 120 mm of Hg, whereas diastolic pressure का normal value है 80 mm of Hg, millimeters of mercury. ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स ये नॉर्मल है. अगर मैं हाइपरटेंसिव बोलूँ, हाई ब्लड प्रेशर बोलूँ, तो मैं हाइपरटेंसिव कंडीशन में, हाइपरटेंसिव टेंशन कंडीशन में इट इज़ मोर देन 140 mm Hg एंड दिस इज मोर देन 100 mm Hg. ठीक है. Whereas हाइपोटेंसिव, जब ब्लड प्रेशर बहुत ही कम होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ही कम हो गया मतलब हार्ट की एफिशिएंसी समवेयर डाउन द लाइन इज अफेक्टेड. सो हाइपोटेंसिव में इट इज लेस देन 100 mm Hg और लेस देन 70 mm Hg. ओके. सो नॉर्मल प्रेशर आपको याद करना है बेटा, हाइपरटेंसिव प्रेशर कितना है और हाइपोटेंसिव प्रेशर आपको कितना है वो याद करना है, राइट. तो ब्लड प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय दी वॉल्स. अभी आपको ये बाय दी आर्टरी ऑन दी, बाय दी ब्लड ऑन दी वॉल्स ऑफ दी आर्टरी. अब नॉर्मल कितना है? 120 है. ओके, 80 है. मतलब अगर हार्ट काम भी नहीं कर रहा है तो भी आपके आर्टरीज में 80 mm Hg का प्रेशर होगा बेटा. But when the ventricles is pumping some extra amount, this 80 will become 120. That is the only difference. ठीक है. Now device which is used, device used to measure, the device used to measure the blood pressure is a sphygmomanometer. Sphygmomanometer. ठीक है. राइट. ये स्पेलिंग आपको याद रखना है बिकॉज इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा. बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. ठीक है, तो स्पेलिंग याद कर लो, sphygmomanometer. इज दैट राइट? ओके. डिवाइस यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर. नाउ another concept, that is pulse pressure. Pulse pressure. पल्स जनरेट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर आपको ज़्यादा लगेगा, दैट इज व्हाट इज पल्स प्रेशर. मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये वर्ड की टर्मिनोलॉजी. सो व्हाट इज पल्स प्रेशर? आई टोल्ड यू व्हाट इज अ पल्स. पल्स इज डिफरेंट एंड पल्स प्रेशर इज डिफरेंट. आई विल राइट डाउन हियर ऑल्सो. व्हाट इज अ पल्स? Pulse is a small jerk experienced in the superficial arteries due to ventricular systole. ओके. सो पल्स अलग है बेटा जो आप रेडियल आर्टरी में देखते हो. सो जनरली मैं ये भी लिखता हूँ, इट इज नोट, इट इज एक्सपीरियंस्ड
in the radial arteries, radial artery of wrist and carotid artery in the neck. तो ये पल्स है. तो पल्स जनरेट करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर ज़्यादा चाहिए आपको. ठीक है, मतलब इन अदर वर्ड्स व्हेन वेंट्रिकल्स आर अंडरगोइंग डायस्टोल, इसका मतलब ब्लड इज स्टिल देयर इन द एट्रिया. नो माय मिस्टेक, ब्लड इज स्टिल देयर इन द आर्टरी, correct? But when ventricles undergo systole, I told you an extra amount of blood is pushed and that creates a pulse. So pulse pressure वो है जो that is the amount of pressure required to produce a pulse in the artery. ठीक है, बट इसको डिफाइन कैसे करेंगे? मतलब 80 तो नॉर्मल है, 120 सिस्टोलिक प्रेशर है, तो आपको कितना ज़्यादा लगा सिस्टोलिक, कितना ज़्यादा लगा एक पल्स बनाने के लिए? सो इन अदर वर्ड्स पल्स प्रेशर को मैं लिखूंगा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, पल्स प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक प्रेशर and diastolic pressure. ठीक है, therefore pulse pressure is equal to 120 minus 80, that comes to 40 mm of Hg. समझी गए बेटा? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. पल्स प्रेशर अलग है, पल्स बनाने के लिए कितना एक्स्ट्रा प्रेशर चाहिए वो पल्स प्रेशर है, पल्स अलग है. इज दैट राइट? सो दैट इज द मेजर डिफरेंसेस, दैट इज द मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड प्रेशर विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. एंड ब्लड प्रेशर के साथ हमने पल्स प्रेशर भी यहाँ पे कंसिडर कर लिया. इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है. सो इन अदर वर्ड्स आई टोल्ड यू पल्स कैन बी कोरिलेटेड विद the heartbeat, right? Pulse can be correlated with the heartbeat. मतलब pulse generate क्यों हो रहा है? Because of the heartbeat. मतलब heartbeat क्यों हो रहा है? Because of the ventricular systole. So everything is absolutely linked to each other. Cool? So that here ends up our topic with respect to blood pressure. ठीक है? Blood pressure. Now one simple topic जो आपको याद रखना है, this can be a point of extra information, extra points to remember, अब एक्स्ट्रा पॉइंट्स में एक important concept आता है, that is murmur. मरमर करू नका, ये वो वाला मरमर नहीं है. मरमर इज़ नथिंग बट, मरमर इज़ एन इंग्लिश वर्ड. इट मीन्स तुम कान में ऐसे बोलते हो तो उसको बोलते हैं मरमर. मतलब फॉर एग्जांपल आपको टीचर बोलते हैं कि प्लीज़ कीप क्वाइट एंड देन यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक वेरी लाउडली. करेक्ट? यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक वेरी लाउडली, सो यू स्पीक in a very low sound, but still that sound is audible. So that sound is audible as a murmur, है ना. कुछ ऐसे शांति से बोलते रहोगे, that's a murmur. What is murmur associated with heart? So murmur is a hissing sound. नागिन, नागिन नागिन कैसे शॉर्ट्स पिए नागिन, कुछ भी बकवास कर रहा हूँ, ठीक है. So what is murmur? Murmur is a hissing sound which is produced in the heart. मतलब अगर नॉर्मल हार्ट बीट के बीच में एक ऐसे साउंड आ रही है, नॉर्मल लबडब साउंड के बीच में एक हिसिंग साउंड आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज मर्मर. ठीक है. अ हिसिंग साउंड एक्सपीरियंस्ड इन दी हार्ट इज कॉल्ड एज, एक्सपीरियंस्ड ड्यूरिंग द एस्कल्टेशन इज कॉल्ड एज मर्मर. ठीक है. सो व्हाट इज द कॉज ऑफ मर्मर? व्हाट इज द कॉज ऑफ मर्मर? इट इज द valvular defect. valvular defect.
इफ द वॉल्स आर नॉट पार्शली क्लोजिंग, ठीक है, नॉट पार्शली मतलब इफ द वॉल्स आर पार्शली क्लोजिंग, ठीक है, कंप्लीटली वो बंद नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है बेटा कि ब्लड कैन एक्सपीरियंस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बैकफ्लो, ठीक है, मतलब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आना चाहता है, करेक्ट, बट बिकॉज द वॉल्स आर पार्शली ओपन, दे डोंट क्लोज कंप्लीटली, ठीक है, वैल्वुलर डिफेक्ट के वजह से दे डोंट कंप्लीटली क्लोज, सो इस ऐसा चांसेस हो सकता है कि वेंट्रिकल्स में से बैकफ्लो हो, right? And if that is the condition, that condition has to be fixed as soon as possible, because otherwise the person might also develop various other circulatory complications, ठीक है. So cause क्या है? valvular defect, like most of the times it is valvular defect like valvular stenosis. Valvular stenosis. Stenosis is the medical term for hardening, ठीक है. जनरली ये होता है ऐसे, किसी किसी को देर इज रूमेटिक फीवर या स्क्रफ टाइफस, ऐसे जो फीवर होते हैं रूमेटिक फीवर एंड ऑल में, इसमें हार्ट के वॉल्स आर मेजरली अफेक्टेड. सो हार्ट के वॉल्स में इधर कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है, तो हार्ट के जो वॉल्स दे बिकम एब्सोल्युटली हार्ड. सो हार्ड वॉल्स इजीली बंद नहीं हो पाएंगे टेक्निकली. सो इन दैट पर्टिकुलर केस द डॉक्टर विल हैव टू परफॉर्म अ सर्जरी, ईदर वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी, बिकॉज अभी आर्टिफिशियल वॉल्व्स अवेलेबल है, ठीक है. सो वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी, ऐसे कुछ स्पेसिफिक सर्जरी दे विल हैव टू इनकॉर्पोरेट, सो टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ मर्मर, ठीक है. सो ये आपको समझ गया है. इन मर्मर दिस कैन इंडिकेट, इट कैन इंडिकेट बैकफ्लो, इट कैन इंडिकेट स्मॉल अमाउंट ऑफ, it can indicate small amount of backflow. ओके. दूसरा जो एक्स्ट्रा पॉइंट है दैट इज इकोकार्डियोग्राफी. इकोकार्डियोग्राफी is the ultrasound imaging of the heart. That is echocardiography. ठीक है. Similarly, there is one more extra point, that is phonocardiogram. Phonocardiogram मतलब something related to sound. Phono refer to sound. So heart की unusual sounds, ठीक है, नॉन प्रोमिनेंट साउंड, दैट इज S3 and S4 को मेजर करने के लिए द डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट लेस prominent heart sounds. Less prominent heart sounds is called as phonocardiogram. Again I told you these are all extra topics. पढ़ो, ठीक है, पढ़ो और सिर्फ याद रखो. Most of the time questions are not expected from this particular section. Something which is very important वो है ये आ बहु important છે, ठीक है, આ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. एंड आ बहु इम्पॉर्टेंट છે, ठीक है. तो in other words I might also teach you Gujarati. So in other words, what we did from the first slide is extremely important. This is also very important, ठीक है. Similarly कार्डियक आउटपुट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके बेसिस पे आपको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. अगर आपको ये सिंपल फॉर्मूला याद नहीं होता है तो आई वुड सजेस्ट, अगर आपको ये सिंपल फॉर्मूला याद नहीं होता है
तो आई वुड सजेस्ट कि बायोलॉजी छोड़ दो और कोई कुआं ढूंढ लो, ठीक है। माई वर्ड्स इज एब्सोल्युटली कटु शब्द बोल तो मी आता, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक क्वेश्चन तो आप आपके टॉपिक वाइज पेपर में एक्सपेक्ट करो ही, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, ठीक है। आई होप द लेक्चर इज टर्निंग आउट टू बी informative. I do not know how well I am projecting myself and making it interesting, because it is a one way transmission of knowledge, ठीक है। So I may not be able to make the lecture as interesting as possible, but I am trying to make it as informative as possible. Cool. So that is all for today. Thank you so much for watching. Let's close this particular video. Take care.